Hello students, how are you guys? I hope all of you are doing good and fine guys. Guys, I welcome you all in this series, INMO Flashback series. So guys, in this series we are solving previous year INMO question papers, and in each video we are solving one question at a time, okay? And so far we have completed the question papers starting from year 2000 to 2008, right? Currently we are going through the INMO 2009 question paper. Also guys, today will be the last question of INMO 2009 as well. So with today's video, with this video, and basically with this video, 10 years worth of papers will be completed, and all the videos you can find it on our channel. Also playlist has been formed. You can go through it in an order in the playlist as well, right? Okay, so this video will mark a milestone of 10 question papers. 10 years के question paper complete हो जाएंगे, right? So that is around 60 questions of INMO, right? All right, before beginning guys, today's question is based on inequality. ठीक है, हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, एंड यू विल ऑब्जर्व कि INMO के अंदर कोई ऐसे कोई नई इनइक्वालिटी नहीं यूज करनी पड़ रही है. ओके, विल बी यूजिंग वेरी कॉमनली नोन थिंग्स, वेरी टिपिकल थिंग्स जो हमने पढ़ते हैं वैसे भी जनरली थ्योरी में. ओके, so before beginning guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics ever since graduating for the last 9+ years for various competition exams like IIT JEE, Maths Olympiads and KVPY etc. Right? So guys, चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं. Right? Let me show you the question here. Okay, all right, here it is guys. So this is the question. Okay, you can see it here. So let A, B, C be positive real numbers such that A cube plus B cube plus C is equal to C cube. ये आपको मालूम है, right? Sum of A cube B cube is equal to C cube and A, B, C be positive real numbers. ठीक है, तो ये भी important बात आपको ध्यान में रखनी है. तो ऑलरेडी आपको ये पता है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट? सो व्हाट यू हैव टू प्रूव इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज ग्रेटर देन 6 टाइम्स C माइनस A इंटू C माइनस B, राइट? ये आपको प्रूव करना है. Okay, so guys, first of all, I'll request and urge you guys to please pause the video and try this question by yourself. मैं हर बार कहता हूँ ये बात आपको वीडियो के अंदर. So please pause the video and try this question by yourself, guys. तो इसको 1-1.5 घंटे का अटेम्प्ट दो अच्छा सा, then only watch the solution. In both cases, either आपका क्वेश्चन हो जाता है तो भी देखो, है ना? क्योंकि either your method which you might think right it's the right, हो सकता है एक तो गलती ना हो गई हो उसमें सही आंसर निकालने के लिए. प्रूव वाले में हो जाता है कई बार, है ना? और अगर सही निकाला भी आपने तो भी बहुत अच्छी बात है. इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, एंड इन द वीडियो इट माइट बी अ डिफरेंट वे, राइट? तो आपको दो मेथड पता लग जाएंगे कि हो सकता है वीडियो के अंदर अलग मेथड हो आपसे, है ना? एंड अगर नहीं भी हुआ है, अगर आपने 1-1.5 घंटा लगा दिया और क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाया है, देन ऑल्सो इट इज फाइन, बिकॉज देन आफ्टर 1.5 आवर इफ यू वॉच द सोल्यूशन यू विल एक्चुअली लर्न अ लॉट. आपको बहुत सारे एंगल से पता लगेगा कि जो आप सोच रहे थे वो चीजें सही क्यों नहीं थी, उसमें क्यों गलत था, ये सो ऑन, राइट? So that will also help in your learning. But बिना अटेम्प्ट किए करोगे then it will not help you. Really telling you, आप 15 दिन के बाद भूल जाओगे ये चीज, फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं हो पाएगा, राइट? ओके, ऑलराइट. सो गाइस, आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया ये क्वेश्चन को. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? लेट अस स्टार्ट विद दिस एक्सप्रेशन इटसेल्फ गाइस. A क्यूब प्लस B क्यूब इक्वल टू C क्यूब है ना? कैन आई रीअरेंज इट लाइक दिस? देखो, A क्यूब को लिख सकता हूँ C क्यूब माइनस B क्यूब, राइट? Just taking B cube to the other side, I can then factorize it, right? It can be written as C minus B into C square plus B square plus BC, correct? ये लिख सकते हैं. So guys, now मेरे पास क्या टर्म्स है? A square plus B square minus C square है यहाँ पे. I want A squares and C minus A, C minus B जैसे टर्म्स चाहिए. Can I do one thing? I'll keep A square on the left hand side. A cube है ना, उसमें से A square रखा और इस C minus B को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, right? So on the right hand side it will be C square plus B square plus BC, right? right hand side पे ये तो है ही, divided by A cube का एक A हम इधर लेके जा रहे हैं डिनोमिनेटर में, right? This is fine ना? So we are equating A cube and this expression, and उसमें से हम थोड़ा सा rearrange कर रहे हैं A square upon C minus B, और एक A को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं राइट साइड पे क्रॉस करके, एंड बचता है क्या? न्यूमरेटर में C square plus B square plus BC, right? So guys, in a very symmetric way, आप दूसरा वाला भी तो लिख सकते हो. You can also write this thing, B cube is equal to C cube minus A cube, which can be written as C minus A into C square plus A square plus AC. करेक्ट, ये भी लिख सकते हैं.
So just like this expression guys, I can also write b square upon c minus a. इसको भी rearrange कर लेते हैं, right? I'll be left with c square plus a square plus ac divided by b, correct? ठीक है. So guys, these are two equations that we have, you know, rearrange करके ये form कर लिए, right? So let us do one thing, है ना? एक चीज observe करके देखते हैं. देखो, if I simply add the first equation and the second equation, what will happen? A square upon c minus b plus b square upon c minus a correct. This is equal to c square plus b square plus bc divided by a plus c square plus a square plus ac divided by b. ये बन गया, राइट? दोनों को ऐड कर दिया बस सिंपली. Now let us solve the left hand side first guys. थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. सी क्या आता है? इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई गेट a स्क्वायर c माइनस a क्यूब. क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? a स्क्वायर के साथ c माइनस a मल्टीप्लाई होगा ना, और b स्क्वायर के साथ c माइनस b. ओके, मैं लिख देता हूँ c स्क्वायर टाइम्स c माइनस a प्लस b स्क्वायर टाइम्स c माइनस b डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट c माइनस b c माइनस a. मैं अभी के लिए ना सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? राइट, दिस विल कम आउट टू बी व्हाट? एलसीएम ओपन कर लेते हैं न्यूमरेटर के अंदर टर्म्स को. सो इट इज a स्क्वायर c माइनस a क्यूब प्लस b स्क्वायर c माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय c माइनस b c माइनस a. राइट गाइस, ये आ गया. अब गाइस आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब, बट यू नो a क्यूब प्लस b क्यूब इज c क्यूब, राइट? I can replace it with c cube. So let us see. So a square c plus b square c तो पढ़ा ही हुआ है. जो माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब है, that will be equivalent to minus c cube, correct? Divided by the same thing, c minus b c minus a. Now guys, in the numerator, can I simply write? I can simply take c common, and that should be equal to a square plus b square minus c square divided by c minus b into c minus a. राइट गाइज, यहां तक आ गए. नाउ गाइज डू ऑब्जर्व वन थिंग. हमें ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन तो डिराइव करना था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय c माइनस a c माइनस b. कुछ ऐसा ही बन रहा है, राइट? एक c टर्म आ रहा है, चलो उसको देख लेंगे हम, राइट? दिस थिंग इज क्लियर. सो गाइज लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर क्या बन रहा है? दिस एक्सप्रेशन, एंड दिस इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, राइट? ओके, आपको गाइज दिखा देता हूं मैं. अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि मैं इसके साथ ही कैसे कंबाइन करके सोच सकता हूँ, राइट? द थिंग इज गाइज, ए बी सी पहली बात तो पॉजिटिव है, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिला के सी क्यूब बनता है, राइट? दो क्यूब्स ऐड होके सी क्यूब बन रहा है. सो एटलीस्ट यहाँ से मेरे को ये तो मालूम है ना दैट सी शुड बी ग्रेटर देन ए. द टू थिंग्स दैट आई कैन से, दैट सी शुड बी ग्रेटर देन ए एज वेल एज बी. दोनों से बड़ा नहीं होना चाहिए और बी से, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज सी क्यूब. तो इंडिविजुअल के नंबर से तो बड़ा ही होगा ना सी. ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, क्योंकि एक भी टर्म जीरो नहीं है इनमें से, है ना? ए और सी इक्वल हो सकते हैं अगर बी जीरो हो जाए, और बी ना नेगेटिव है ना जीरो हो सकता है अगर बी भी कुछ पॉजिटिव है. ए क्यूब के अंदर कुछ ऐड करके सी क्यूब आ रहा है ना. सो इजंट दैट सी क्यूब इज सी इज ग्रेटर देन ए एज वेल एज बी बाय द सेम लॉजिक. तो c minus a and c minus b are positive brackets, so no problem in taking them in the denominator if needed. ठीक है ना? ये चीज बता रहा हूँ, इसको नीचे लेके जाया जा सकता है. चलो, anyways, so guys now left hand side so is equal to this particular expression. तो guys इसको c से हटा देते हैं ना, ये वाला c हम राइट साइड पे ले जाते हैं. तो let me write the expression then. Okay, मैं लिख के दिखा देता हूँ. So I can write here c times a square plus b square minus c square divided by c minus a c minus b. ये पड़ा हुआ है हमारे पास. This particular expression is equal to c square plus b square plus bc, right, upon a plus c square plus a square plus ac upon b. करेक्ट? सो गाइस एक काम करते हैं, इधर से ac कैंसिल कर देते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. करेक्ट? आई टुक इट टू द अदर साइड. नाउ गाइस क्वेश्चन देखो ध्यान से, मुझे इसको इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट्स काइंड ऑफ आई हैव टू प्रूव दैट दैट इज ग्रेटर देन 6, है ना? तो राइट हैंड साइड को बस ग्रेटर देन 6 प्रूव करना है मुझे, काइंड ऑफ, एंड दैट इज क्वाइट इजी. लेट अस सी हाउ. गाइस देखो अब मैं AMGM अप्लाई करने जा रहा हूं, देखते हैं. सी गाइस यहाँ पे न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन देखो कैसे बने हुए हैं, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस bc, राइट, बाय AMGM, राइट.
or am greater than equal to gm on b square and c square, shouldn't I say that b square plus c square is greater than equal to 2bc? ये तो बहुत बेसिक वाली है ना. अगर आप b square plus c square by 2 greater than equal to bc लिखते हो, 2 को उधर ले जा रहे हैं, so b square plus c square is greater than 2bc and same way c square plus a square is greater than equal to 2ac. बट गाइज यहाँ पे एक चीज है, मैं यहाँ पे इक्वालिटी हटा सकता हूँ. वाई? एज सच इक्वालिटी आनी चाहिए. इक्वालिटी लेकिन कब होल्ड करती है? इफ b and c are equal. But we know b is lesser than c as well as a is lesser than c. So I can actually change it to this inequality. Rather remove कर देता हूँ मैं इक्वालिटी का साइन यहाँ पे. ठीक है. So these will be the actual signs, right? This thing is clear. So guys, जो राइट हैंड साइड है मैं उसको सॉल्व करते हुए ये लिख सकता हूँ. देखो राइट हैंड साइड पे b square plus c square is greater than 2bc, right? So I'll write it as 2bc plus bc. It will be greater than sign, not equal to sign, right? क्योंकि मैं b square plus c square को bc से बड़ा बता रहा हूँ, 2bc से. So 2bc plus bc upon ac आ गया, right? Same c square plus a square is greater than 2ac plus ac upon b into c. ये बन जाएगा. Guys, this thing is clear. क्योंकि b square plus c square is greater than 2bc, मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ अभी के लिए लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इससे बड़ा है. सिंपल है. So guys, see this. How much is it? 3bc. 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से. This is 3bc upon ac plus 3ac upon bc. So again guys, so both the terms के अंदर c हम कैंसिल कर देंगे. I can cancel that c. Rather अब हम 3 कॉमन भी ले लेंगे. So this particular expression is greater than 3 times b by a plus a by c. Guys, now it's almost done. देखो 3 times, okay, 3 तो कॉमन है, ठीक है. b by a plus sorry, a by b आना था, sorry, right? 3 by a by b plus b by a plus a by b. That is the expression, right? So guys, a term plus its reciprocal, वो तो कभी भी mgm से फिर से क्या आएगा? b by a plus a by b by 2 is greater than equal to 1, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 हो गया. So which implies a plus a by b plus b by a is greater than equal to 2. And ये कब होगा? इक्वल टू 2 कब होगा? इफ b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यू कैन से b इक्वल टू a. हाँ, उसकी पॉसिबिलिटी है. b इक्वल टू a होने को तो हो ही सकता है, तो उस पर हम कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. बट एनीवेज यहाँ पे ग्रेटर देन साइन था, सो दिस विल बिकम ग्रेटर देन 6 एज वेल. अगर उसको आप 2 बोल देते हो, सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सिंस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, राइट? ये आ गया आपके पास. नाउ यू कैन जस्ट सिंपली c माइनस a c माइनस b का टर्म है गाइस, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. You'll finally have by cross multiplying a square plus b square minus c square. ठीक है, मैं लिख देता हूँ. चलो, इफेक्टिवली आपके पास आ क्या गया? डिवाइडेड बाय c minus a, c minus b. You have got that this is greater than 6. ले जाओ इसको इधर. So you'll get a square plus b square minus c square greater than 6 times c minus a into c minus b. And that is the expression that we had to derive. इसी को derive करना था हमने. Correct? That is what we needed to prove. So guys, कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज किया हमने. देखो कुछ भी नहीं किया. All we have done earlier was do a bit of factorization और उसको rearrange करके हमने ऐड किया, so that we were able to form this particular expression that was required in the question. थोड़ा ट्राई करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे जा सकते हैं उसके बारे में, right? We just tried to form c minus a, c minus b, उससे हेल्प मिला, right? So that is it guys. This was the last question of INMO 2009. So with this, we have completed 10 years question papers of INMO, starting with year 2000 and going till 2009. तो 10 साल के कर चुके हम. Obviously, we'll coming with the next videos as well, next year papers as well. खत्म नहीं रोकेंगे नहीं अभी इसको, ठीक है? We'll try to make a repository like that on YouTube as well, है ना? 10 साल के पेपर हो गए हैं, बाकी 10, 11, 12 साल के भी कर लेंगे, just like that, going with this pace only, right? Alright guys, I hope सबको समझ में आया, मजा आया ये क्वेश्चन करने में. If you guys understood and like this question, please like the video and subscribe to our channel so that आपको regular updates मिलते रहे. And guys, in case you have joined or started watching just now, and the previous questions, all the previous questions starting with year INMO 2000, वो already posted है channel पे, so you can have a look at them as well. Okay? Hello students. Guys, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. Now, since we are towards the end of this session, this right, because 30th October को exam है, as you all guys must be knowing for IOQM, right? We are going to launch the time भी बहुत कम है, so we are going to launch the last course जिसके अंदर theory पढ़ाई जा रही है,
एंड दिस इज वन इज द रिकॉर्डेड कोर्स, डेली सेशन रहेगा आपका, है ना, टेस्ट भी रहेंगे इसके अंदर. सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस कोर्स नेम्ड लास्ट माइल, बिकॉज नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट पॉसिबल कोर्स दैट यू कुड डू और यू कुड ऑप्ट फॉर, है ना, फॉर IUQM इफ यू आर टारगेटिंग IUQM फॉर दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर एज वेल, जिसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी, सारी की सारी थ्योरी कवर होगी. वो फीचर्स मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ. So important thing is this batch is for class 7th to 12th. 7th class के students although इस साल एग्जाम नहीं दे सकते हैं, but ये for those students actually उनको क्या होगा, बहुत ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा. So see many things might happen. 7th class के students को you know हो सकता है कि बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आए बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं की हुई हैं, बट द थिंग इज काफी चीजें समझ में आ भी जाएंगी एंड दोज थिंग्स विल हेल्प अ पर्सन, हेल्प अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू एक्सप्लोर मोर. उसके आगे उसको समझने में टूल मिल जाएगा उसको समझने का, जिससे कि उसको समझने में बहुत ईजी होगा आगे के टाइम में. सो उसका लेवल अप तो पक्का हो जाएगा. दैट इज द रीजन फॉर क्लास 7th. और बाकी के सब स्टूडेंट्स तो इस साल में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो उनके लिए तो ये कोर्स बेनिफिशियल होगा ही होगा, राइट. द डेट फॉर द बैच लॉन्च इज 22 अगस्त. सो सर गाइस 22 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगे एंड एवरी डे देयर विल बी अ सेशन, सो फॉर 1.5 आवर. उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताता हूँ, ठीक है. लेट्स सी. सो गाइस इन दिस कोर्स यू विल बी गेटिंग 40 टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सेम लेक्चर्स दैट आर गोइंग ऑन इन दैट हैव ऑलरेडी बीन डन इन IUQM अचीवर्स बैच, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, तो उसमें सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी. सो वी हैव डिजाइन्ड अ न्यू कोर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 40 टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ द सेम लेक्चर्स जो भी हमारे कोर्स IUQM अचीवर्स में चल रहे हैं. अदर देन दैट यू विल गेट 15 रिवीजन लेक्चर्स, ठीक है, ये अलग से मिलेंगे. दीज आर द रिवीजन लेक्चर्स ऑफ द अदर बैचेस, pre-RMO रिवीजन बैचेस that are going on. Okay, and in this course you'll be having 10 part tests and 10 full tests. Once the syllabus is over in the October month, you'll get 10 full tests as well. Okay, and one of the most important thing that you'll get with this batch or with this course is Telegram doubt solving. So guys, if you enroll with this course, right, you'll be added in our Telegram doubt solving group. You'll be added in a group on Telegram in which you can post your doubts, any doubts you have, and those will be answered within 24 hours, okay, by us teachers and our team. Okay, so that is one of the most important aspect of this course. And then you'll get chapter wise assignments. So about 8 to 9 chapters हैं सीधा सीधा. तो हर चैप्टर के लिए आपको असाइनमेंट मिलेगा एंड उन असाइनमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एज अदर देन ओवर एंड अबव द रिटन सॉल्यूशंस. आपको टेक्स्ट में तो सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. इन दोज चैप्टर वाइज असाइनमेंट गाइज देयर आर 3 लेवल्स. आई विल टेल यू दैट बिफोर हैंड. चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स के अंदर गाइज 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 इज बेसिकली अंडर pre-RMO लेवल विच विल हेल्प यू इन गेनिंग ट्रैक्शन विद द टॉपिक, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए टॉपिक के लेवल की, टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के लिए बेसिकली. एंड देन लेवल 2 इज बेसिकली IUQM लेवल क्वेश्चन, सो दैट इफ यू हैव टू डू, आपके पास टाइम कम है तो लेवल 1 और लेवल 2 जरूर करना इंपॉर्टेंट है, राइट, इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IUQM. तो गाइज सेकेंड लेवल में के अंदर जैसा मैंने आपको बताया IUQM लेवल प्लस क्वेश्चंस हैं, एंड इन द लेवल 3 यू विल गेट RMO प्लस INMO लेवल क्वेश्चंस. सो दैट विल बी लाइक काइंड ऑफ आप लोगों के लिए टाइम कम है क्योंकि you might skip it, आपकी मर्जी है वो. अगर टाइम है तो you can obviously you should go for it, but level 1 and level 2 are the essential and the most mandatory topics levels kind of thing. तो आपको वो करना ही चाहिए if you are opting for this course. Okay, and as I said, assignments के साथ में आपको उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे. you'll get an Excel sheet जिसके अंदर हर क्वेश्चन का YouTube के वीडियो का लिंक दिया जाएगा for the solution thing. Okay, you can watch the solution as well. And guys, you are getting all of these features and this course at this last ditch effort in 2,777 rupees. The cost of this course is 2,777 rupees, right? But if you apply my code LJ Pro, अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो, you can find the link in the description as well. Then you will get this 10% instant discount, extra discount, and you will be able to get this course at 2,500 rupees. And guys, I assure you, you will get your full value, guys. पता है, मतलब लोग सोचते हैं कि 2,500 rupees मांग रहे हैं, ज्यादा रुपए हैं, ऐसा कुछ है, जो भी है. I would like to tell you guys one thing. हमने इतनी मेहनत से ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इतनी चीजें बनाई हुई है. आई एश्योर यू आपको ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा.
एंड दैट टू एट सच लो प्राइस गाइस, जिसके जो इसके अंदर हम जो क्वालिटी और जो चीजें दे रहे हैं ना आपको, इट्स लाइक आई वुड से कि दिस इज एक्चुअली प्राइस लोअर फॉर दैट, ठीक है ना। वो तो जस्ट ये है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फायदा हो, वी आर यू नो like pricing it very nominally. So I would suggest, if you're positive and you want to have enthusiasm about IOChem, you should not think about the price. आपको इस कोर्स से बहुत फायदा होगा, इवन इफ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई गाइस, ये कोर्स के अगर थ्रू निकल गए ना आप, इफ यू डू अटेंड दीज 40 लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, आप ये जरूर सोचोगे बिफोर 40 लेक्चर्स एंड आफ्टर 40 लेक्चर्स आपका लेवल का डिफरेंस आप खुद महसूस करोगे. You'll yourself feel the difference in your own knowledge after attending this 40 lectures. Okay, so that is all from my side guys. Though you have the links in the description, आप click कर सकते हो, you will be directed to the page and you can enroll in our course directly. Okay, so I would suggest guys, अगर आप लेना चाहते हो तो जल्दी ले लेना, so that again backlog create ना हो. 22 अगस्त को बैच शुरू हो रहा है, so आपको देर ना हो जाए उसमें, फिर से backlog ना हो जाए, so that you feel pressurized, extra pressurized. So if you want to do qualify IOChem और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, so this is the course, आप इसको attend कर सकते हो. Okay, so that is it from my side guys. Thank you guys. I hope you enroll in our sessions and you'll come to our classes and it will benefit you, I hope, right? Thank you guys. Bye bye. Take care.